Hey, my friends, we come to that aspect of public administration which can actually make an administrative system fail or succeed as far as the people are concerned. And that is accountability. We all know that people in power have a tendency to become corrupt. And as they say, absolute power might corrupt you absolutely. So most of the administrative personnel, the bureaucrats, they are holding very powerful positions. And as such, accountability of such persons holding the powerful positions is one of the most critical aspects of any public administrative system. And especially so in Pakistan, where every day we hear these stories about mega corruption and all kinds of corruption. And also, it has to be ensured that the kind of services and relief which the bureaucrats or the administrative system is supposed to provide to the common man is there. And if it's absent or excesses are being committed, where can the common man resort to for relief? तो हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं हमें कई लेवल्स पर देखना पड़ता है। सबसे पहले वो लोग, वो अफसरान जिनके पास बेपनाह पावर्स हैं, क्या वो उनका इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं तो वो क्या तरीकाकार है जिससे उनको पकड़ा जा सकता है? और जो इस तरह की गलत पावर्स इस्तेमाल करने का रिजल्ट है वो यही है कि किसी न किसी से ज्यादती हो रही है। उस ज्यादती का अजाला कैसे किया जा सकता है? And this is a problem or an aspect of public administrative systems. Everywhere, in every country, you will find that accountability mechanisms have to be put in place to ensure that the public servants are working properly the way they should and not going beyond their powers, not committing excesses, not getting captured by vested interests, not being corrupt. These are not small issues, and it is not easy to tackle them, especially in a country like ours, where there has been a tradition of the feudal landlords capturing the bureaucracy and in the process marginalizing the common person out, the common man out of the game. So what is there, what mechanisms are available for accountability? First of all, each and every department and organization has its own internal system of accountability. Any and every department is governed by certain disciplinary rules. So if someone is committing some errors or causing a loss to the state exchequer or going beyond his powers and indulging in misconduct, then the efficiency and discipline rules of the government of Pakistan are there to be applied by the department itself. So this is internal accountability. That organization or department, whether it be the police department or the social welfare department
or any other department or state-owned enterprise or any entity of the government, it has an internal accountability system which is governed by the efficiency and discipline rules of the government of Pakistan. But it was found that this is not enough. Despite all those rules in place and being exercised many a time, still the state of affairs would not have improved much. So the concept of external accountability, accountability from outside the system, or provision of relief from outside the system, came into being. And today, we shall be looking at those external organizations which ensure accountability or provide relief to the common man for any excesses committed by the bureaucracy. So first of all, we look at this entity called Ombudsman, the concept of which actually emanated from Sweden and has been taken up by many countries. They have ombudsman. We have a federal ombudsman and a provincial ombudsman. So what is the ombudsman? The 1973 Constitution provided for the establishment of the institution of ombudsman, also called the Wafaki Muhtasib. But this did not actually come about until the 1983 establishment of the office of Wafaki Muhtasib under a presidential order. So a delay of 10 years must have been some vested interests. The mandate of the ombudsman is to ensure bureaucratic accountability, especially to diagnose, investigate, redress, and rectify any injustice done to a person through administration. तो जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस्तेमाल करते हुए किसी से ज्यादती होती है, वो ombudsman को अप्रोच कर सकता है और ombudsman उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसको रिलीफ देगा. It also ensures independence. To ensure the independence of the ombudsman, he is appointed for a fixed 4-year term by the president and cannot be reappointed, and he cannot be removed from the office except for misconduct. So appointment is by president, लेकिन उसको निकालना आसान नहीं है, उसको निकाला नहीं जा सकता. इस तरह उसकी independence ensure हो जाती है. It is to function as a non-partisan, non-political office. Services are to be provided free of cost and without formalities. Any citizen can make a complaint to the ombudsman, and while this should be made within 3 months of the grievance, the ombudsman can use his discretion to take up older complaints. यानी आपके साथ अगर ज्यादती हुई है तो आप एक सिंपल दरखास्त देंगे, कोई कोर्ट फीस कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं कि जी मेरे साथ इस महकमे में ये ज्यादती हुई है. और 3 महीने का एक पीरियड दिया हुआ है कि आपके साथ जब ज्यादती हुई है 3 महीने के अंदर अंदर करें, लेकिन अक्सर वो ombudsman उसको रिलैक्स कर देते हैं. In response to a complaint, the ombudsman can call witnesses, demand documents, and constitute an inspection team to search any premises. तो ना सिर्फ ये कि वो बिल्कुल कोर्ट की तरह, दिस इज अ क्वासी जुडिशियल फोरम, यानी कोर्ट की तरह वो विटनेसेस बुला सकते हैं, एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और उसके अलावा एक इंस्पेक्शन टीम बना के सर्च भी करवा सकते हैं प्रेमिसेस. यानी अगर कोई छुपा रहा है कोई रिकॉर्ड या कोई और ऐसी चीज तो सर्च का ऑर्डर दिया जा सकता है. द ओम्बुड्समैन हैज द पावर टू पनिश for contempt any person who obstructs his work where a complaint is found to be justified. He can award costs and compensation, refunds to the aggrieved person. तो monetary relief भी दे सकता है. उसके अलावा इसके पास कंटेम्प्ट की वही पावर्स हैं जो कोर्ट के पास होती हैं. तो इससे खासा स्टेचर ombudsman का बन जाता है. The federal ombudsman is to submit an annual report to the president within the first 3 months of the next calendar year. हर साल ombudsman अपने कार्रवाई के बारे में जो केसेस किए, क्या रिलीफ प्रोवाइड की, वो सारी डिटेल्स प्रेसिडेंट को पेश करता है. There are many agencies, notably the defense services and provincial administration, which do not fall within the federal ombudsman jurisdiction.
यानी मिलिट्री वगैरह जो है उनका अपना तरीकाकार है रिलीफ प्रोवाइड करने का, अकाउंटेबिलिटी का, तो ombudsman कवर नहीं करता। इसी तरह फेडरल ombudsman जो है वो प्रोविंसेस को नहीं कवर करता, प्रोविंसेस के अपने प्रोविंशियल ombudsman है। In these cases, the ombudsman can use informal dispute resolution techniques to bring about reconciliation and resolve the issue. तो इस केस में उन एजेंसीज में जो उसके परव्यू में नहीं आती, डिस्कशन हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकती है, जिसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक्स कहते हैं। यानी आर्बिट्रेशन हो सकती है, नेगोशिएशन हो सकती है अंडर सच सर्कमस्टांसेस। मसलन अगर किसी ठेकेदार का मसला किसी डिफेंस अथॉरिटी के साथ था और वहां कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें ATR यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को ombudsman इन्वोक करा सकता है। The ombudsman is supposed to operate independent of the executive, but its dependence for operational requirements on other government agencies undermines its autonomy. For example, reappropriation of amounts exceeding rupees 50,000 from one budget head to another has to be done with the concurrence of the finance division. Overall काफी हमने देखा कि इंडिपेंडेंस है, लेकिन जब फाइनेंशियल मैटर्स में एक कंस्ट्रेंट है, यानी बजट जब मिल गया आपको ombudsman को, उसके बाद बजट में जो प्ले करना है आपने एक हेड से दूसरे में पैसे डालने हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वैसे ही। जब आपका बजट आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मिल गया तो फिर ये यू कैन मैनेज दिस। Early reports indicate a lack of awareness on the part of the public about the existence of the federal ombudsman, how it could help them and how they could access it. As a result, there are numerous complaints registered with the ombudsman which fall outside the office's jurisdiction. यानी लोगों को पता है वफाकी मोतसिब है, लेकिन ये नहीं पता पावर्स क्या है वफाकी मोतसिब की, वो कौन से महकमे हैं जो उसके परव्यू में आते हैं और नहीं आते। तो गोया ये एक थोड़ा वीकनेस है कि वफाकी मोतसिब ने अपने आप को रीच आउट नहीं किया और पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि किस केस में वफाकी मोतसिब के पास उनको जाना चाहिए। सो देयर इज अ नीड फॉर द ombudsman to really reach out to the public, to advertise, to tell about what they are doing, so that people know when they can approach this forum, in what cases. The Ombudsman office was set up without rules and procedures in place, including any for permanent staff, and these were developed much later, and some of them are still under preparation. कोई बात नहीं, ये चलता रहा, लोग तो आगे, रिक्रूटमेंट होती रही। एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है ombudsman का, फेडरल ombudsman का, उसमें बहुत से कंसल्टेंट्स रखे जाते हैं और हर कंसल्टेंट जो है उसकी एक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। किसी की पावर होगी, किसी की सुई गैस से होगी, जो महकमे हैं उनके मुताबिक कंसल्टेंट्स उस एक्सपर्टीज के रखे जाते हैं। तो ये तरीकाकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ और साथ साथ उसके रूल्स डेवलप हुए, मगर थोड़ी डिले हो गई। वीक implementation of the ombudsman recommendation has been a major problem. In the case of findings from individual complaints, federal agencies tend to make representations to the president, a practice which persists despite repeated directions from the president's office not to do so. The agencies ignore general recommendations. अब ombudsman जो है उसका डिसीजन जो है उसके खिलाफ आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। यू कैन ओनली अपील टू द प्रेसिडेंट। और ये कोई मजाक नहीं है कि आप हर चीज प्रेसिडेंट के पास जाके अपील कर लें, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मिसयूज किया और छोटी छोटी चीजों में भी प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। अब दो तरह की रिलीफ की बात हो रही है या दो तरह के ombudsman के ऑर्डर्स की बात हो रही है। एक वो जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ दी जाए कि जी हाँ, इसका बिजली का बिल 5 लाख जो आया है, इसके तो 4 पंखे चलते हैं, ये क्या हुआ, करेक्ट इट। सो द डिपार्टमेंट शुड बी करेक्टिंग इट, बट many a time it was seen that the departments were not carrying out the instructions or complying with the decisions of the ombudsman. प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर
तो ये एक जो एस्पेक्ट है दैट नीड्स टू बी डिस्करेज्ड। और एक और जो दूसरा, एक तो ये रिलीफ हो गई, दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ombudsman टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस करता रहता है, लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेते। While the provincial administration does not fall within the jurisdiction of the federal ombudsman, from the moment it was established, it received many complaints related to provincial agencies. लेकिन बाद में provincial ombudsman भी बन गए और लोगों को पता लग गया कि province के जो government departments हैं, they do not fall within the purview of the federal ombudsman. और जैसे जैसे ये awareness बढ़ती रही, तो complaints जो थी कम होती गई, क्योंकि पहले सुपरफ्लुअस कंप्लेंट्स आ जाती थी, हर किस्म की कंप्लेंट्स आ जाती थी जिनका परव्यू ही नहीं था, ओम्बुड्समैन का इख्तियार ही नहीं था, दायरा कार में नहीं होती थी वो बात। लेकिन लोगों को क्योंकि नहीं मालूम था कि उन्होंने कहा जी ये एक मसीहा बस आ गया है, जो मर्जी है, जो भी मसला हो इसके पास लेके चले जाओ। लेकिन अब कुछ स्ट्रीमलाइन होते मामलात नजर आ रहे हैं। The federal ombudsman's informal resolution efforts also shifted from provincial agencies to other outside the ombudsman's jurisdiction, for example, PIA, the Civil Aviation Authority, etc. तो वो जो हमने informal resolution mechanisms की बात की थी, alternate dispute resolutions की बात की थी, वो भी लागू होने शुरू हो गए इस किस्म की organizations पे, मसलन PIA हुआ, Civil Aviation Authority, जो कि almost independent, yeah, very, very autonomous authorities, and can perhaps, and do not strictly fall within the definition of a government department. These corporations or autonomous organizations के साथ भी एक, let's say, narrative develop कर लिया ombudsman ने, और through alternate dispute resolution mechanisms लोगों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा, ये तो ombudsman था। अब पार्लियामेंट का क्या रोल है अकाउंटेबिलिटी में? दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड वी ऑल कीप ऑन हियरिंग अबाउट दिस थिंग कॉल्ड द PAC, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कई कमेटीज हैं और सब कमेटीज हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओवरऑल कमेटी, आगे इसकी सब कमेटीज भी हैं। सो दीज कमेटीज एंड सब कमेटीज आर चार्ज विद certain things. If it is the subcommittee or the committee of the shipping ministry, then it is going to look after the affairs or supervise or call to attention these people who are involved in shipping. Perhaps in committees में सबसे important जो committee है, that is the public accounts committee, क्योंकि इसका काम है ये इंश्योर करना कि पब्लिक एक्सचेकर, टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल हो रहे। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं तो उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना जिन्होंने ये किया है। सो बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नॉट जस्ट द वॉचडॉग, बट एक्चुअली examines all the accounts of the organizations, of the government organizations, and sees that whatever irregularities have been done, and those irregularities may have been pointed out by the Auditor General of Pakistan. So the PAC ensures that the irregularities pointed out are examined, and whatever action needs to be taken should be taken. And sometimes we have seen that public account committees have really contributed towards ensuring that there is lesser corruption, that whatever corrupt practices have been there, action is taken against those people. The Public Accounts Committee therefore signifies one of the essential constituents of parliamentary dominion, which is the culpability of public money. Public money has to be guarded properly.
The examination of Auditor General's reports for the ministries, divisions, corporations and other independent and semi-autonomous bodies is one of the main functions of the PAC. यानी ऑडिटर जनरल आके बताता है, वो पूरी एक किताब कंपाइल करते हैं ऑडिटर जनरल का ऑफिस, क्योंकि उनकी टीमें जाके ऑडिट करती हैं हर महकमे का, और ऑडिट में इरेगुलरिटीज पकड़ी जाती हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि पैसे जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल किए गए कि नहीं, खर्चा जो हुआ वो उतना ही था जितना बजट में होना चाहिए था, और अगर कोई चीज़ खरीदी गई या कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया तो वो क्या रेगुलर तरीके से हुआ, प्रोसीजर्स फॉलो हुए या नहीं, और अगर कहीं ये पता लगा कि लॉस हुआ एक्सचेकर को ड्यू टू करप्शन और व्हाटएवर, दैट इज ऑल्सो पॉइंटेड आउट। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको एग्जामिन करती है PAC जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उनके सामने आती है फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर। हर साल ऑडिटर जनरल अपनी इस किस्म की एक रिपोर्ट पेश करता है PAC को। The PAC is one of the statutory organs of the National Assembly of Pakistan according to the Article 171 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The report of the Auditor General relating to the accounts of the Federation shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the Parliament. यानी जो ये रिपोर्ट आती है ऑडिटर जनरल की, वो जाती तो प्रेसिडेंट को वो पेश करता है, लेकिन इट इज ब्रॉट बिफोर द पार्लियामेंट एंड एग्जामिन्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने अपना एक तरीकाकार आगे ये कमेटी जो स्टैट्यूटरी लीगल है ये, और इस सारे तरीके का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इट्स ऑलवेज देयर। द स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज are established by federal and provincial governments to examine the accounts of governments and their agencies and their matters. तो PACs ने फेडरल लेवल पे भी हो गई और प्रोविंशियल लेवल पे भी, जो प्रोविंशियल असेंबली उसकी अपनी PAC होगी। Each PAC consists of not more than 12 members elected by the Assembly, and the Minister for Finance is an ex officio member. तो 12 लोग हर असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबलीज, वो ये बना देते हैं PAC 12 मेंबरान की। और क्योंकि सारा मामला फाइनेंस का है और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का है, फाइनेंस मिनिस्टर का या फाइनेंस सेक्रेटरी का होना वहां जरूरी है। सो फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। In accordance with the National Assembly rules of procedure on standing committee, the PAC is required to ensure that क्या क्या करना है, the monies shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose for which they were applied. यानी जो पैसे जहां इस्तेमाल हुए वो उसी मद के, उसी काम के लिए पहले मुख्तस थे, ये उसने देखना है कि availability of that money was legal, it had been earmarked, it had been passed in the budget. और second step क्या है? The expenditure conforms to the authority which governs it, and every reappropriation has been made in accordance with the rules framed by the Ministry of Finance. यानी reappropriation ये होता है कि आपने लेटेस्ट से एक आपका अदारा है और आपको 5 लाख रुपए स्टेशनरी के लिए मिले हुए हैं और आपको 10 लाख रुपए पेट्रोल के मुख्तस हुए हैं, गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल। आपने अगर स्टेशनरी के 5 लाख में से 2 लाख निकाल के डालने हैं पेट्रोल में और उसके 12 लाख बनाना है, तो क्या ये आप कर सकते हो? आपकी पावर है कि नहीं? सो रीअप्रोप्रिएशन इस प्रोसेस को कहते हैं। टेकिंग मनी फ्रॉम वन हेड, एक तरीके से जो इस्तेमाल होना था उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह इस्तेमाल करना। और बड़ी करप्शन इन वजूहात से भी होती है कि आप वो पैसा जो किसी और काम के लिए था किसी और में इस्तेमाल कर लिया जहां पे आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो एक तो एक्सपेंडिचर जो है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, किस तरीके से आपने खर्चा करना है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ठेका देना है या उसकी पेमेंट्स करनी है तो उसका एक तरीकाकार है। अगर आपने कुछ परचेज करना है उसका तरीकाकार है, आपने कोटेशंस मंगवानी है या आपने बिडिंग करनी है, करवानी है। सो दोज
पब्लिक एक्सचेकर से जो भी पैसा खर्च हो रहा है, रूल्स हैव टू बी फॉलोड, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ रीअप्रोप्रिएशन. The Federal Public Accounts Committee of the National Assembly is responsible for scrutinizing the accounts showing the appropriation of sums granted by the Assembly for expenditure by the government. तो ये सब कुछ scrutinize करेगी PAC. Once the accounts for a given financial year are consolidated and the Auditor General of Pakistan has finalized reports on these, both accounts and EAGP reports are forwarded by the Ministry of Finance to the President and thereafter laid before the National Assembly through a motion in the name of the Ministry of Finance. ये हमने पहले भी बात की. तो दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके. एक तो वो हो गया कि आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं अकाउंट्स की, उस तरीके से बने हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर महकमे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, कॉरपोरेशन की. और दूसरा कि उनमें इरेगुलरिटीज क्या हुई. रिपोर्ट्स, बोथ अकाउंट्स एंड एजीपी रिपोर्ट्स आर फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यानी एक ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होगी, एक तो अकाउंट्स हो गए प्रॉपर फॉर्मेट में, दूसरा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो ये बता रही है कि ये इरेगुलरिटीज हुई हैं. बोथ आर प्रेजेंटेड बिफोर द असेंबली, बिफोर द पार्लियामेंट. Once the accounts for a given financial year are consolidated and the Auditor General of Pakistan has finalized, we have already seen this. In the event of the Assembly being dissolved, the Ministry of Finance refers the accounts and audit reports to an ad hoc Public Accounts Committee constituted by the Ministry of Finance with the approval of the President. यानी ये काम चलता रहता है, ये रुकना नहीं चाहिए. अगर तो असेंबली नहीं है उस वक़्त किसी वजह से डिसॉल्व हो चुकी है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब भी एड हॉक, यानी असेंबली के मेंबर्स की नहीं, वैसे और मेंबर्स एक्सपर्ट्स इधर से नॉमिनेट कर देता है प्रेसिडेंट टू मेक अ एड हॉक पब्लिक अफेयर्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो ये एग्जामिनेशन ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज irrespective of the parliament being in session in place or not. The National Assembly Public Accounts Committee comprises not more than 19 members and is chaired by the Minister of Finance. तो चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और 19 मेंबरान तक हो सकते हैं इसके. Its specific functions are to scrutinize the appropriation and other accounts of the federal government as well as state corporations, autonomous and semi-autonomous bodies, and the reports of the Auditor General on these, and satisfy itself that the expenditure was in accordance to the purpose for which funds were provided. ये बहुत important है आखिर में. And satisfy itself that the expenditure was in accordance with the purpose for which funds were provided. यानी अगर आपने वैक्सीन पोलियो की खरीदनी है और पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाने हैं, देने हैं, तो आपने अगर वो पैसे बजाय पोलियो ड्रॉप्स पे खर्च करने के आपने 4 गाड़ियां लेने में खर्च कर दिए, तो क्या वो इन अकॉर्डेंस with the purpose है? Of course not. And these things happen quite often. और ये जो reappropriation का मैंने कहा, वो एक तरीका, एक मैकेनिज्म है इस किस्म की रेगुलरिटी करने का. इधर से इस मद में से जो एक काम के लिए पैसे उठा के उधर रख दो जिसमें हम चाहते हैं कि खर्चा करें. सो सेटिस्फाई करना है अपने आप को ऑन बिहाफ ऑफ द असेंबली पीएसी ने कि जनाब पैसे उसी काम के लिए खर्च हुए जिस काम के लिए दिए गए थे. एक, और दूसरा कि उनका तरीकाकार इस्तेमाल करने का सही था. If any money has been spent on any service in excess of the authorized grant or appropriation for that purpose, the committee is to examine the case and make such recommendation as it may deem fit. यानी अगर आपको 500 रुपए मिले हैं खास काम करने के लिए, लेकिन आपने 800 रुपए खर्च कर दिए, तो बजट के मुताबिक जो भी आपने प्लान भेजा था या बजट एस्टिमेट्स भेजे थे 500 खर्च करने थे.
आपने अगर 800 कर दिए, there should be a good reason for that. So PAC going to examine that and may come up with any recommendation. It might say that this was irregular. Those 300 extra rupees were spent irregularly and should be deposited back by those person who indulged in that irregularity into the national exchequer. वापस करें उस पैसे को. The reports repeatedly show the Public Accounts Committee criticizing government ministries and departments for delaying initiation and conduct of investigations and disciplinary proceedings. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये कहती है कि ये रेगुलरिटी हुई है, इन बंदों ने की है, आप इनके खिलाफ एक्शन लें अंडर द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अक्सर मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हिचकिचाती हैं, वो दे हेसिटेट, दे डोंट वांट टू टेक एक्शन, which again is natural because maybe the whole organization is involved in that irregularity in one way or another. Maybe even the boss of the person who is supposed to have committed the irregularity was involved in that also, but without being on record. So these organizations tend to delay things, delay disciplinary action, delay investigations as far as possible. In many cases, these lingered on for several years, by which time the personnel involved had retired, passed away, absconded, and recovery of the stolen government property was impossible. तो कई दफ़ा तो इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि कुछ लोग बाहर भाग जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो अपने पैसे बना के रेगुलरिटी करके गायब हो गए और डिपार्टमेंट ने फिर उनको कवर अप कर दिया. ये होता है अक्सर. Delays in conducting investigations and disciplinary proceedings is an important contributory factor in the tendency to write off losses due to theft, embezzlement, etc., and not push for recovery of those. एक कॉन्सेप्ट है राइटिंग ऑफ लॉसेस का गवर्नमेंट में, यानी अगर कुछ आपको इरेगुलरिटीज की वजह से लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए, रेगुलराइज कर दिया जाए. उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि जनाब वो आदमी तो मिल नहीं रहा, कि वो आदमी तो रिटायर हो गया, कि वो आदमी तो एक्सपायर हो गया, और मेनी अदर रीजंस आर put up for to make sure or to request the Public Account Committee can write off. कि जनाब जाने दें जी, आप write off कर दें. This is a tendency. The PAC also reports a range of irregularities committed by staff of ministries and departments. Some involve personal gain, but others are simply failure to carry out their duty properly. ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो रेगुलरिटी की है वो सिर्फ इस वजह से की है कि आप उसमें से बेनिफिट कुछ लेना चाहते थे या कुछ पैसे बनाना चाहते थे, पर यह भी हो सकता है कि आपने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं की, जो आपको करना चाहिए था नहीं किया आपने, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो गया. मसलन आपने कोई दवाइयाँ मंगवाई और आपने उनको दूर दराज मुफस्सल एरियाज में भेजना था, लेकिन वो पड़ी रही आपके कैपिटल में, प्रोविंशियल या फेडरल कैपिटल में पड़ी रही, बिग सिटीज में पड़ी रही, वो उन गांव तक, उन यूनियन काउंसिल्स तक, उन बेसिक हेल्थ यूनिट तक नहीं पहुंची जहां जाना चाहिए था और एक्सपायर हो गई. सो इन दिस केस इट इज जस्ट मेयर नेग्लिजेंस कि जो आपकी ड्यूटी थी आपने नहीं किया, आपको फौरन पहुंचा देनी चाहिए थी दवाइयां ताकि वो इस्तेमाल हो जाए. सो दिस इज अ केस वेयर personal gain is not involved, but the lethargy and the laid back attitude, who cares type of attitude of the individuals concerned led to a great loss. आपकी लाखों की करोड़ों की दवाइयां एक्सपायर हो गई, फिर क्या करेंगे आप? Those people should be held responsible in one way or another. अगर नहीं करेंगे तो next time more and more departments will become more and more careless in these matters, with eventual loss to the government, to the nation, and to the health of the people. अगर आप दवाइयों की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो बर्डन जो है
वो आपके हेल्थ के बजट पे और हो जाएगा जब वो लोग और बीमार होंगे. In many cases where irregularities are identified by department, responsibility is not fixed on particular officer staff. Without this, it is impossible to take disciplinary action. मसलन ये दवाइयों वाली जो बात है, वो कहेंगे जी वो उसने करना था, वो उसका काम था, वो उसका काम था. The department will try that no single person gets focused or held responsible. Otherwise, that person will have to pay the costs of having been negligent. So there is this tendency also to diffuse the whole matter, bring in many persons and try to say कि जी उसकी गलती पता ही नहीं लग रहा. The report of the committee is required to be presented within 1 year from the date on which the assembly referred to it, unless the assembly extends the period by resolution. The PSC should give the final decision on audit reports. Most of these reports have not been considered mainly due to the following reasons. यानी एक और जो रिपोर्ट्स बना लेता है ऑडिटर जनरल, उसको डिले करने का भी एक तरीका होता है कि यार पीएससी के सामने ना जाने दो, जितना डिले हो सके करो. हालांकि इट इज रिक्वायर्ड दैट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द असेंबली द रिपोर्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू इट. और अगर वो ऑडिटर जनरल ही नहीं करेगा तो आगे कहाँ रिपोर्ट जाएगी. सो रीजंस क्या है इसके? पीएससीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड और इंटरमिटेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर लॉन्ग डिलेज. पीएससी जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पार्लियामेंट की, परहैप्स कोई हो कोई और ना हो, और उसको डिले किया जाता है. इवन व्हेन PSCs आर कॉन्स्टिट्यूटेड, मीटिंग्स आर वेरी सेल्डम हेल्ड. वो यानी पार्लियामेंटेरियंस में भी वही laziness, lethargy, status quo, not taking on things, not examining reports as the way they should be. In some cases, the chairperson has not been appointed and therefore meetings are not called. And you need a chairperson to steer the committee. If he's not there, you got a problem. It has been stated that responsiveness to audit reports has never been considered as a priority. यानी audit कह रहा है कि जी ये मसले हैं, इतना पैसा ज़ाया हो गया है, इतना पैसा embezzle हो गया है, इतनी करप्शन हो गई है. बट इट अपीयर्स दैट द पीएससी डजंट टेक दैट एज अ प्रायोरिटी. द पीएससी रिपोर्ट्स हाईलाइट पुअर बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. यानी पीएससी जब रिपोर्ट करती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, तो उसमें बजटिंग और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो कहते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है. इसी तरह जो पैसे बचते हैं उनको सरेंडर नहीं किया जाता, प्रॉपर रेकंसाइलेशन नहीं होती फिगर्स की. The PSC may examine the expenditures, administration, delegated legislation, public protection and policies of the ministry concerned. यानी उसकी पावर्स को भी पीएससी एग्जामिन कर सकती है. क्या डेलीगेटेड पावर्स है उनके पास एक्सपेंडिचर करने की, क्या वो एडहियर हुई कि नहीं, और मिनिस्ट्रीज की पॉलिसी क्या है विज़ वी प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल. और अगर उन्हें कोई पिटिशंस आए इरेगुलरिटीज के बारे में मिनिस्ट्री को आए बाहर से कि जी ये काम आपका गलत हुआ है, इरेगुलर हुआ है, तो उन्होंने क्या उस पर एक्शन लिया. तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस इस किस्म की मिनिस्ट्री को भेजती है, और मिनिस्ट्री ने जवाब देना होता है कि ये इरेगुलरिटीज कैसे हुई और क्यों हुई और इनका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है. So this was the PAC. Now, very important component, the Auditor General of Pakistan, who is going to bring up all these reports. The Auditor General is appointed by the President and is responsible for the accounting function and auditing function of the Federation and provinces. दोनों functions. Accounts को properly maintain करवाना, consolidate करना और उनका audit करना. दोनों functions. हालांकि ये थोड़ा सा duality आ जाती है. यानी एक हद तक आप कह सकते हैं कि एक बंदे को दोनों चीजें करनी नहीं चाहिए. Auditor should have nothing to do with the accounts. This situation gives rise to a serious conflict of interest which has been the subject of critical comment by ADB and other donors over recent years. ये क्योंकि दोनों functions परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे भी वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये कहते हैं कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. So please try to make the Auditor General only an auditor and independent.
To the credit of the government, a high-level committee has been appointed to review this situation. The Auditor General of Pakistan is mandated to certify the accounts compiled and prepared by the Controller General of Accounts or any other person authorized in that behalf for each financial year, showing under the respective heads the annual receipts and disbursements. यानी वो जो accounts बनाए गए हैं हर department ने बनाए हैं, यानी हमें इतने पैसे मिले और इतने पैसे खर्च हुए वगैरह वगैरह किस तरीके, और वो सारा कंसोलिडेट होता है फिर गवर्नमेंट के लेवल पर जाकर, मिनिस्ट्रीज का कंसोलिडेट होता है, फिर गवर्नमेंट का कंसोलिडेट होता है और उसको करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और सीजीए ने जो रिपोर्ट बनानी है उसको ऑडिटर जनरल ने सर्टिफाई करना है कि ये सही बनी हुई है अकाउंट्स की रिपोर्ट, दैट इट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। जैसे किसी भी प्राइवेट कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके ऑडिट करते हैं और कहते हैं कि जी ये इसके अकाउंट्स फेयर हैं, प्रॉपर हैं। The Auditor General is expected to bring about improvements in the financial discipline and internal control environment in the executive departments for minimizing the possibility of waste and fraud. यानी ऑडिटर जनरल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्प्रूव करेगा सिस्टम्स को, बताएगा मिनिस्ट्रीज को ऐसे चलें आप लोग तो कम फ्रॉड होगा, कम वेस्ट होगा, ज़्यादा डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है ऑडिटर जनरल की। His department is nominated as the Supreme Audit Institute of Pakistan. यानी हर मुल्क में एक महकमे को सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है और पाकिस्तान में ऑडिटर जनरल को ये टाइटल दिया गया। The Auditor General of Pakistan is appointed under the Constitution of the country. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होती है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं, उसका टेन्योर भी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है लिखा हुआ। तो ऑडिटर जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। His reports are laid before the national, provincial and district assemblies and are considered in the public account committees of the respective assemblies. यानी वो उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हो सकती है, उसने कोई दिए हो तो उसको डिस्ट्रिक्ट असेंबली कंसिडर करेगी, एंड सो ऑन। प्रोविंशियल की, फेडरल की तो हम बात कर चुके हैं। His mandate enables him to strengthen the legislative oversight by providing an independent and objective assessment of the process of governance both at the federal and provincial levels. इतना बड़ा mandate है उसका। Provincial level पे भी, यानी right down to the district where things are happening, and of course the federal level also. तो वो मदद कर रहा है अब असेंबली की, लेजिस्लेचर की, ये रिपोर्टें बनाकर कि जी प्रोविंसेस में ये हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में ये हो रहा है, इस किस्म इस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, ये रेगुलरिटीज हो रही हैं, ये ज्यादतियां हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़ा मैंडेट। The budget of the Auditor General is classified as charged expenditure. Charged expenditures are not voted upon by the Parliament. तो independence आ गया इसके पास। Even the Parliament can't cut the budget of the Auditor General. This arrangement leads to his institution a degree of independence. About 1,500 qualified officers assist the Auditor General in the discharge of his responsibilities. It is a huge organization. 1,500 लोग काम कर रहे हैं आप। The Deputy Auditor General and the Controller General of Accounts report to the Auditor General. There are many Deputy Auditor Generals specialized in various aspects of auditing who form a team and are reporting to the Auditor General. But also the Controller General of Accounts, the CGA, who consolidates all the accounts of the government and presents them to the Auditor General for certification, is also under the Auditor General. ये वही conflict of interest या role की conflict की बात आ गई। The Accountant General of Pakistan revenues and the Accountant General of each province report to the Controller General of Accounts. अब हर प्रोविंस में एक अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यूज होता है और एक ओवरऑल अकाउंटेंट जनरल होता है। ये सीजीए को रिपोर्ट करते हैं, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो फेडरल गवर्नमेंट में हेड कर रहा है और बैठा होता है इस्लामाबाद में। Approximately 11,000 employees in the Auditor General's department, with 60% working for accounts and 40% for audit. यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो
दूसरे निकाल कर जो 15,000 में से जो वाकई टेक्निकल लोग हैं 60% वर्क कर रहे हैं अकाउंट्स में और 40% ऑडिट में वर्क कर रहे हैं। द प्रोपोर्शन लुक्स ओके, क्योंकि जो ऑडिटर है उसने हर चीज का ऑडिट नहीं कर रहा, रैंडम ऑडिट होता है कहीं कहीं। देयर इज अ कंसर्टेड एफर्ट being made at the federal and provincial level to at least bring into question the powers of Auditor General. तो ये हमने देखा ऑडिटर जनरल का सेटअप जो था, एक ह्यूज सेटअप, 15,000 people working there, technical people, well versed in their own professional capacities, और वो पूरे अकाउंट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के। ऑडिटर जनरल उनको जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, सारे कंसोलिडेट करके पेश कर रहा है ऑडिटर जनरल को, वो उसको सर्टिफाई कर रहा है कि ये सही अकाउंट्स हैं, और साथ एक रिपोर्ट दे रहा है कि जी ये अकाउंट्स तो सही हैं लेकिन इस दौरान ये इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, और वो सब कुछ जो है पीएसी को प्रेजेंट हो रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और वो उस पर एक्शन ले रही है। तो जो इसमें कबाहतें थी, जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो भी हमने देखे कि डिलेज किस तरह होती हैं, किस तरह लोग एक दूसरे को बचाने के लिए डिले करते जाते हैं, और किस तरह मिनिस्ट्री जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं पीएसी के ऑर्डर्स को या इंस्ट्रक्शंस को जितना कि देना चाहिए। एंड नाउ वी कम टू द फेमस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो पाकिस्तान में वी ऑलवेज हेयर अबाउट नैब, ऑफ समवन बीइंग नैब्ड, यानी करप्शन में पकड़ा गया कोई। तो ये नैब क्या है? ये इस वक्त सबसे बड़ा और शायद कंट्रोवर्शियल भी हमारा अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। The NAB was established in 1999, replacing the Ehtisab cell created under the Ehtisab Act 1997 to investigate corruption cases. तो primarily इसका focus corruption पर है। And it replaced the Ehtisab cell which was set up through a piece of legislation. The NAB ordinance was promulgated on 16 November 1999, soon after the overthrow of the Nawaz Sharif government and the onset of military rule. यानी इसको आके activate 1999 में किया गया। In broad terms, the ordinance provides for क्या-क्या? Investigation and prosecution of cases related to corruption, recovery of outstanding loans from defaulters, एक corruption की बात आ गई, दूसरा जिन लोगों ने हुकूमत के पैसे लेके बैठे हुए किसी न किसी वजह से नहीं दिए वापस, उनसे वो पैसे निकलवाना, हुकूमत के जायज़ पैसे, चाहे वो कर्जे उन्होंने लिए हों, चाहे टैक्स के सिलसिला हो, जो भी हो, वो निकलवाना। रिकवरी ऑफ स्टेट मनी एंड एसेट्स मिसअप्रोप्रिएटेड थ्रू करप्शन और रिमूव्ड अब्रॉड, यानी आपने वो पैसे भी, उन पर भी आपका मैंडेट है, ऐसे पैसे करप्शन के जो लोग बाहर ले गए हों मुल्क से, वहाँ बैंकों में या और प्रॉपर्टी में रखे, उनको भी वापस लाना। अ की मैंडेट ऑफ नैब इज टू रिकवर स्टोलन एसेट ट्रांसफर्ड अब्रॉड and bring justice accused people who have fled abroad, और bring to justice वो लोग, उन लोगों को भी कानून के सामने लेकर आए जो पार भाग गए ये पैसे लेकर। NAB's approach to enforcement has changed over time from the initial focus on high value, high profile corruption cases to making more use of plea bargaining, to the current three-pronged approach of awareness, prevention and enforcement. यानी पहले NAB ये करता था कि बड़े बड़े मेगा केसेस उनको पकड़ता था और फिर उनके साथ एक प्ली बार्गेन करके कि ठीक है, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे अगर आप ये पैसे जमा करा दें, वापस पैसे रिकवर कर लेता था, बजाय इसके कि लंबी लिटिगेशन में पड़े या कोई और मसले मसाइल हो। लेकिन आजकल ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने पर और करप्शन को प्रिवेंट करने में, बजाय ये कि हो जाए करप्शन और आप फिर पैसे वापस लाने की कोशिश करें, उसके बजाय आप प्रिवेंट क्यों ना करें करप्शन को। सो तीसरा जो एस्पेक्ट है इसकी आजकल के अप्रोच का, वो एनफोर्समेंट, कि आप इन्फोर्स करें डिसिप्लिनरी एक्शन को, अदर लॉज को,
ताकि करप्शन ना हो सके। फिर वही प्रिवेंशन का पोर्शन हो गया। और ओवरऑल इन्फोर्समेंट एफर्ट्स नैब्स फोकस हैज बीन ऑन रिकवरी रादर देन अकाउंटेबिलिटी। एक तो हम तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आप रेफरेंसेस जो भी हैं, जो आपने लोगों से पैसे लेने हैं वो तो लेने ही है आपने, लेकिन क्या आप अकाउंटेबिलिटी मेजर्स को भी बेहतर कर रहे हैं? तो द फोकस शुड बी ऑन बोथ, अकाउंटेबिलिटी को भी बेहतर करें तरीकाकार को, और रिकवरी भी करें। एक ये जो कह रहे हैं, नैब हैज हैड एन इमेज प्रॉब्लम सिंस इट वाज क्रिएटेड। दिस परसिस्ट डिस्पाइट द चेंज अप्रोच टू एनफोर्समेंट and considerable efforts to communicate its work and anti-corruption messages. नैब को जैसे लोगों को नैब ज़्यादा कहना, और उससे ये माइंडसेट पता लगता है कि नैब को लोग समझे नहीं, उसको नेगेटिव कॉनोटेशंस है नैब की। हालांकि नैब इज सपोज टू बी डूइंग द गुड वर्क, ट्राइंग टू गेट द मनी पीपल हैव लॉन्डर्ड अवे या पीपल हैव stolen from the government back to the government। तो एक अवेयरनेस की जरूरत है, और इन्होंने मुहिम चलाई है कई अवेयरनेस की, लेकिन कोई खातर खा उसके रिजल्ट्स नहीं निकले। NAB has also been hampered by other factors including difficulties in recovering assets, getting extraditions from abroad, Pakistan's undocumented economy which makes tracing assets difficult, and limited governance reforms। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फैक्टर्स जो हैं ये विद इन द कंट्री हैं, और हमारी अपने ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से नैब पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हो सका। और वो क्या है? उसमें हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, यानी बैंक के थ्रू काम नहीं हो रहा, आप हुंडी के थ्रू काम कर रहे हैं, आप किताबें नहीं मेंटेन कर रहे अपनी अकाउंट्स की क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप कच्ची किताबों पे काम कर रहे हैं, नंबर 2 किताबों पे काम कर रहे हैं, विच आर नेवर शोन टू द टैक्स पर्सन। सो ये जो अनडॉक्यूमेंटेड पार्ट है इकोनॉमी का, उसमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैसा किसका था और किधर गया। इसी तरह जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन का पैसा है, वो भी इस सिस्टम में जाके लूज हो जाता है और उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप उसको नहीं ट्रेस कर पाते तो यू कांट होल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल। और इसी तरह हमारी गवर्नेंस भी बड़ी पुअर है, यानी आपने अगर कोई भी चीज इन्फोर्स करानी हो नैब को दूसरे अदारों से तो वो इतना आसान नहीं होगा। इसी तरह बाहर से जो एक्सट्रेडिशन करानी है आपने, अगर आपने बाहर से लोगों को लेकर आना है जो पैसे लेकर भाग गए, या पैसे को बाहर से लेकर आना है, तो उसमें भी बड़े लीगल इश्यूज आ जाते हैं। सो द नेचर ऑफ आवर इकोनॉमी इज सच, द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ऑफ आवर इकोनॉमी आर सच that it is difficult even for the NAB to recover these amounts which have been wrongly taken away from the country. The NAB ordinance extensively defines corruption and corrupt practices and lays down applicable punishments. These include imprisonment, imposition of fines, confiscation of property, disqualification from public office. तो जो लॉ है, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसको हम नैब ऑर्डिनेंस कह रहे हैं, बिकॉज ओरिजिनली इट वाज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये ऑर्डिनेंस जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें डिटेल में करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है, और ये भी डिटेल में बताया गया है कि किस किस्म की करप्शन के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, यानी किन केसेस में आप उन लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, या उन पे फाइन्स लेवी कर सकते हैं, भाई आपको 1 करोड़ या 50 लाख हमने फाइन कर दिया है, पे करो। इवन इम्प्रिजनमेंट,
ये जनरली हाई फाई और मेगा करप्शंस की बातें हो रही हैं। और जब आप एक बहुत बड़े बंदे को नजर आता है कि यार मेरी तो सजा इम्प्रिजनमेंट है, और वैसे मैं समझा जाता हूँ सोसाइटी में इतनी जबरदस्त चीज, तो वो फिर सोचता है। सो इम्प्रिजनमेंट इज देयर। Disqualification from public office also, very important again from the political point of view, even from the bureaucratic point of view, कि आपको एक सजा ये भी मिल सकती है कि आगे चल के ना आप कोई नौकरी कर सकते हैं और ना आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। You can't be a minister then. So both the definition and explanation as to what is corrupt or corrupt practice, what is corruption or corrupt practices, यानी स्पेक्ट्रम को थोड़ा वाइडन किया गया है। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है उन्हें बड़ा अच्छी तरह डिफाइन किया गया, और फिर एक पूरा स्पेक्ट्रम है आपका सजाओं का, जिससे लोगों को डरना चाहिए। खास तौर पे अगर कुछ शर्म हया है तो डरना चाहिए। NAB operations fall into three main functions: identification and intelligence, investigation and prosecution. हम तो ये समझते हैं कि prosecution is the end. असल चीज जो नजर आती है कि जी आप एक बंदे को केस बना के ले गए आप कोर्ट में, लेकिन उसके पीछे बहुत काम हो रहा होता है। आपने सबसे पहले तो आपके पास खुफिया मालूमात होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कहाँ करप्शन हो रही है। वो भी एक फंक्शन है नैब का, to identify instances of corruption where they're happening. और फिर इन्वेस्टिगेशन, यानी आप ऐसी किसी को फांसी नहीं लटका देते, आपको बाकायदा प्रूफ देना पड़ता है। तो जब तक अच्छी तरह नैब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी किसी भी करप्शन केस को और उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके और करप्शन के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करके और फुल प्रूफ एविडेंस देकर जब तक नहीं जाएगी, तो प्रोसिक्यूशन जब वो कोर्ट में जाके प्रोसिक्यूट करेगी, अपना मुकदमा पेश करेगी, तो वो मुकदमा जो है खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा होमवर्क हुआ है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो फिर वो जरूर सजा हो जाएगी जो भी कल्प्रिट है। सो दिस इज दीज थ्री फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता लगे कि कौन से महकमे में कितनी करप्शन हो रही है, फिर आपने उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्यूमेंटेशन हुई, अपने हाथ में ली, पूरी तरह प्रूफ्स लिए ताकि वो आप कोर्ट में पेश कर सकें। तो जब आपने फुल प्रूफ अपने केस को बना लिया, आप उसको अदालत में ले गए और सजा दिलवा दी। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हैज इशूड 5 एनुअल रिपोर्ट्स सिंस इट्स सेटअप। अच्छा, ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि नैब को एनुअल रिपोर्ट देनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि काफ़ी एनुअल रिपोर्ट हर साल ये दे चुके हैं। अभी ये पिछले साल भी आई है इनकी रिपोर्ट। दीज रिपोर्ट्स assess how the situation has changed from year to year with regard to specific themes or aspects of NAB functioning, for example, staff capacity, public perceptions of the organization. यानी सिर्फ ये वो नहीं बताते कि हमने इतना पैसा रिकवर कर लिया या हमने इतने लोगों को फाइन करवा दिए या इतने लोग जो थे वो करप्शन केसेस में पकड़े गए और प्रूव कर दिया हमने केस। उसके अलावा वो रिपोर्ट में अपनी स्टाफ की कैपेसिटी जो उन्होंने इम्प्रूव की है, प्रोफेशनलाइज किया है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। फिर जो पब्लिक परसेप्शन है, लोग क्या समझते हैं नैब को, लोगों के दिमाग में उसका क्या तासुर है, उसको वो चेंज हुआ है कि नहीं, जो नेगेटिव कॉनोटेशंस थे उसका भी जिक्र होता है उनकी रिपोर्ट्स में। तो ये एनुअल रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इन चीज़ों का पता लगता है और ये भी पता लगता है कि अब तक नैब की कारकर्दगी क्या रही है, कितना पैसा उन्होंने निकलवाया लोगों से और कितने लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अब हम देख लें कि इसका सेटअप क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नैब कंप्राइजेस सेवरल विंग्स।
तो वो 3 मेन काम थे उसके आसपास इन्होंने विंग्स बनाई हुई हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटेलिजेंस, यानी कुछ ऐसे लोग डेडिकेटेड काम कर रहे हैं जो आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कहाँ करप्शन हो रही है, और वो ये इंटेलिजेंस यानी ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। तो एक विंग ये हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी इन्वेस्टिगेशन सही हो रही है कि नहीं, क्या जो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर है वो जाके कहीं मिल तो नहीं गया विद द कल्प्रेट, क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये एक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस की। फिर प्रोसिक्यूशन, यानी ये लीगल लोग होंगे जो वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके और केस तैयार करके अदालत में लेके जाएंगे, नैब कोर्ट में लेके जाएंगे कि जी इस बंदे ने इतनी करप्शन किया और इसको ये सजा होनी चाहिए। फिर रिसर्च एनालिसिस ट्रेनिंग, साथ साथ ये अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं कि जाहिर है इन्हीं एस्पेक्ट्स में वो ट्रेनिंग होगी कि आप कैसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कैसे बेहतर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, और रिसर्च करते हैं साथ साथ कि करप्शन की क्या मैग्नीट्यूड है, कहाँ कहाँ है ज़्यादा करप्शन और क्या किस किस तरीके से करप्शन की जाती है, ऑल दैट। फिर बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स आर द मेन सोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी और फॉर hiding money by using innovative methods in banks. So money is supposed to leave a paper trail, और वो बैंकिंग के थ्रू, सारा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आपको पेपर ट्रेल मिलता है कि कौन सा पैसा कहां से किधर गया, ये ब्लैक मनी कहां कहां पहुंचा। सो बैंकिंग को मॉनिटर करने के लिए एक इनके पास विंग है। ओवरसीज ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट दिस, दैट दे हैव दिस पावर टू गेट एक्सट्राडिशन डन ऑफ पर्सन्स एंड ऑल्सो द पावर टू ब्रिंग बैक इल गॉटन मनी विच वॉज टेकन अब्रॉड। सो एक पूरा इन्होंने ओवरसीज ऑपरेशन का विंग बनाया हुआ है जो ये काम करता है। देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हर महकमे में होती है। एक्सपर्ट्स, इनको बहुत एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ही वो सारा मनी ट्रेल देखना है और किस किस तरीके से क्या हुआ। फिर लीगल साइड पे बहुत एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है कि आप एक फूल प्रूफ केस बनाएं, और करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन और उनको बनाना ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरों से। क्रिमिनल और चीज़ है, सिविल केसेस और चीज़ें, और ये केसेस जो हैं करप्शन के, दे आर अनदर एनिमल। So you got to have experts who can deliver on these. So you need a lot of specialized knowledge. And media, ज़ाहिर है आपकी इतनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आपको मीडिया को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक ख़ास मीडिया सेल बना ली और वक्तन फ़वक्तन आप मीडिया को ब्रीफिंग देते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने इतने पैसे लूटे हुए जो थे अवाम के या गवर्नमेंट के, वो हम वापस ले आए। जो ज़्यादतियाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अवाम के साथ की मनी वाइज, उनको पकड़कर हमने कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया। तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली भी बात है, लेकिन फैक्ट्स भी हैं कि वर्क इज़ बीइंग डन। तो ये सब चीज़ें वो मीडिया सेल का काम है कि इनको हाईलाइट करे ताकि मीडिया उनको पिकअप करे और इनको प्रॉपर प्रोजेक्शन मिले। सो इन ऑल we see that this is a well conceived organization. It has all those important wings in its structure which ensure that things are done in a very professional manner. And it's very important that such an organization is run professionally. The top person must be knowing what he is doing, and the team should be all of proper professionals and experts. And we have seen that there has been a tendency to do so, but there is a lot of criticism of NAB also, especially so on the concept of plea bargain.
which is provided for in the law, but which some people think just reduces down to getting part of the money back from the person and let him go scot-free, and that should not be done. Because if someone has committed such a big crime and looted so much of public money, you're going to have a plea bargain with that person. Okay, this time you give us this much money, well, you can go home, maybe do it again, then we'll ask for some more money. So plea bargain is one of those sections in this act which is very controversial. Although it exists in other countries too, in some other countries, but it is definitely a controversial aspect of the National Accountability Bureau. So we have all these organizations to combat corruption, external organizations, in addition to the internal accountability mechanisms of each and every department. We have these organizations. Some of them are at the level of the parliament, and parliament is the sovereign level in Pakistan. And some of them are very, very professional, like the NAB. And then at the provincial level also, we have accountability setups. They go by different names though. But at the end of the day, when we look around and see, we find that corruption is on the rise. That more and more and more people are getting into dishonest practices. That the ethical and moral values are coming down. So one asks the question, what to do next? And does not find an answer. Thank you very much.